for all the exams, whether it's ACCA, CIMA, CMA, all the exams, you can give exam by sitting in home, you can give exam in the exam center. And this thing is never going to stop now. कोरोना से मतलब नहीं है, सब इंस्टीट्यूट ये मान चुके, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिमांड फ्रॉम स्टूडेंट्स टू गिव एग्जाम सिटिंग इन होम. तो आप घर से एग्जाम बुक कर सकते हैं, वैसे ही एग्जाम होगा 4 घंटे का. अभी हमने we took one webinar 2 days back. That video is uploaded on YouTube. आप बोलेंगे सर वो तो ACCA का था, सबके लिए वही है सर. ACCA, सीमा, CMA, सब में जिसमें भी घर से बैठकर एग्जाम हो रहा है, द सेम सिस्टम इज देयर. तो आपको वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम घर से देने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है. तो एक बार वो वीडियो गो थ्रू कर लीजिएगा, एंड देन वट एवर योर क्वेरीज आर देयर वी कैन डिस्कस. यू अटेंडेड, बट नॉर्मली हिमांशु नहीं थे, तो इसीलिए उनके लिए बोल रहा हूं कि मान लीजिए कोई सोचेगा दैट वाज फॉर ACCA, दैट वाज फॉर एनी होम बेस्ड रिमोट एग्जाम. कि सीमा, ACCA, CMA तीनों एग्जाम के लिए घर पे बैठकर एग्जाम देने का जो स्टोरी है वो सारा सेम है. तो स्टूडेंट कैन गिव देयर ओन कंफर्ट सिटिंग इन होम एग्जाम. कोई चोरी नहीं कर सकते आप, कोई चीटिंग नहीं हो सकता, बिकॉज द सिस्टम इज दैट देयर इज नो चीटिंग पॉसिबल. But just that student if find problem in going, because there are many places where exam center is around 100-200 kilometer away, not in India, बाहर. तो उन लोग के लिए बहुत बढ़िया है कि they don't have to travel 100-150-200 kilometer and they will be able to give exam by sitting in home, sit in their home environment. That is a different feeling altogether. नहीं, webinar हो चुका है. The video is now uploaded yesterday. So when you go there, then you will be able to see that webinar. मैंने तो 50 बार मैसेज किया, लेकिन स्टूडेंट नहीं ज्वाइन करता यार, क्या करें. YouTube, in the YouTube, Prakash Saraf. This is the webinar. This is the webinar. The last video uploaded. A remote exam webinar. Then I am putting this here. मैं वेबिनार का लिंक यहां डाल दे रहा हूं. रिमोट एग्जाम, ठीक है. That's done. So you can click this link and see this video. It will be helping you how the remote exam are held. Okay? So you don't have to search also. So now we are starting our syllabus, that is Part 2, Part C. And Part 2, Part C is the maximum marks in exam. Part 2, Part C is 25%. Sorry. Part 2, Part C. Actually, I have already know. Part 2, Part C. So in Part 2, Part C, they have covered 3 areas: cost, volume, profit analysis, marginal analysis, and pricing. Cost, volume, profit analysis will take only 1 class. Maybe today it will not complete because some extra knowledge was given, but then it takes 1 class. Marginal analysis will take around 2 to 3 classes. Pricing will take around 2 classes. So you can say that 4 to 5 classes it will take, and we will be able to complete along with the questions also. It is said as decision making. Decision making means short-term decision making, not long-term. Because long-term decision making we are doing on Tuesday, Friday.
which is we are investing in a project, we will be getting cash flows for 5 years, 10 years, whether we should invest in the project or not, that is called long-term decision making, which is part E. We are talking about short-term decision making, that my tuition fees for CMA US 58,199. One of the student is saying that, sir, I will be able to pay 50,000, whether I should accept his offer, whether I should allow him the classes or not. Or I can say that I am launching a new product in the market, or I want to change my tuition fees, pricing of the product and services. And there are many short-term decisions, make or buy, stop, this so many things, join product, buy product, different decision process are there that is included in marginal analysis. For understanding marginal analysis and pricing, CVP knowledge is a must. So CVP will be required as a CVP, questions are there, and CVP will be required for understanding these two topics. And you can see CVP is required for short-term decision making. So we are discussing CVP. Now whatever is written here, this is first C1, C2, C3 area, then C1. The C1 is cost, volume, profit analysis, it is written. मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, आपको फिर भी नोट्स एक बार रीड करना चाहिए. Okay? This is, sorry. CVP. We can say cost, volume, profit. Short form is CVP. What we are going to discuss here, or what the syllabus anywhere, because CVP is there in all the courses which are dealing with commerce. Cost, volume, profit analysis, that if our production volume or sales volume changes, what will be the change in the cost? If I am teaching 1000 plus students, and suppose I will teach say 1500 students, then what will be the change in the total cost of Saraf Academy? And because of the change in the cost, and obviously for 1000 to 1500 students, there is a change in the tuition fees also. What will be the effect on my income? There may be other cases also, even though the volume is not changing, but the costs are getting affected because of inflation, because of interest rate, because of anything, oil prices and all that. We are saying that these three things are interrelated. Cost, volume, profit are interrelated. A businessman for short-term decision-making purpose, any business for short-term decision-making purpose need to understand their relationship properly well. Because if we don't understand the cost, volume, profit relationship, we will not be able to take decisions in our business for short-term purpose. Short-term not only, long-term also. हम लोग कोई decision नहीं ले पाएंगे. But here the focus is on short-term. So first of all, we need to understand cost. There are two types of cost in any organization. Variable cost and fixed cost. Even cost has a different classification by different nature. For the time being, our focus in the syllabus is classification of cost based on behavior. By behavior, cost is divided into two categories: variable cost and fixed cost. If the production and sale will go up, will increase, then the variable cost will also increase. If the production and sale will go down, then variable cost will also go down. Variable cost is directly proportional to sales and production quantity. But the fixed cost, even though the production or sale is going up, fixed cost will not increase. Even though the sale or production is going down, fixed cost will not go down. Say I am taking example of Saraf Academy. Internet expenditure. अब क्लास में, लाइव क्लास में 5 जन है, 10 जन है, 2 जन है. इंटरनेट का खर्चा तो फिक्स्ड है. फिक्स्ड मतलब obviously it is based on internet usage. But that internet usage is not increasing because in the class there are extra students. Internet cost is fixed.
salary of my staff is fixed, rent is fixed, electricity is more or less fixed, then you can say these are the cash expenditures. The non-cash fixed expenditures, say depreciation, computer, laptop, camera depreciation, building depreciation, or any other furniture and all that depreciation, those are non-cash, but वो भी fixed है. तो variable expenditure क्या है कि if in Saraf Academy, if I will say that if one student will come, this expenditure will be extra. What is the variable expenditure in Saraf Academy? कि suppose today 2 student new joined for any course, तो उन दोनों के ज्वाइन करने से कौन सा खर्चा एक्स्ट्रा लगेगा? कैन यू से? एनीबडी? What is the expenditure in Saraf Academy which I need to incur on every single student? काउंसिलर. बट काउंसिलर को भी तो मैं सैलरी दे रहा हूं यार. There are 2 counselor we have. They are paid a monthly salary 15 to 20,000. Almost nothing. GST, दिनेश जी GST कहां गया? कि आप जो फीस देते हो, अगर कोई कोर्स के लिए फीस मान लीजिए 15,000 रुपए, तो 15,000 में 18% ईच टैक्स. अगर मान लीजिए आपने 58,199 दिया, तो 58,199 का 18% ईच टैक्स that are collected from the student and given to the government. यानी कि वो मेरे पास नहीं बचता. तो या तो आप उसको मेरा इनकम बोलिए ही मत, और अगर आप मेरे को you will say that that is income of Saraf Academy, then on each student that is the expenditure. और अगर बोलूं इसके अलावा एग्जैक्टली तो कोई वेरिएबल खर्चा हमारे यहां है नहीं कि विच इज बेस्ड ऑन पर स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं. यू कैन सी दैट कि मान लीजिए काउंसिलर को बोला कि इफ देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ दिस मच स्टूडेंट बियॉन्ड दिस, देन इन दैट केस उसको कुछ पैसे दिए. दैट कैन बी पॉसिबल, बट मेरे केस में वो भी नहीं है. मेरे केस में कोई वेरिएबल कंसिडरेशन काउंसिलर को है नहीं, बिकॉज उनका वो क्वालिटी नहीं है कि वो वैसे चीज को समझा पाए. ठीक है, एंड इट इज नॉट विथ मी, इट इज विथ अदर्स ऑल्सो. लीव इट, उसमें नहीं जा रहे हैं. तो मेरा ये बोलने का मतलब है, मेरे केस में आई कंसीडर whatever I collect around 20% is variable cost. If I will consider some here and there some kharcha which is based on each student, then 20% is variable cost. But all are fixed cost. Staff salary is around 1 to 1.5 lakh. Internet, electricity, power, salary, ये सारी चीजें हमारे यहां फिक्स खर्चे. और अगर आप नॉन कैश फिक्स खर्चे पकड़ोगे, डेप्रिसिएशन वगैरह, तो वो भी हो जाएंगे. So if you consider the fixed expenditure in cash in Saraf Academy, they are coming between 2 to 2.5 lakh a month. सच में बोल रहा हूं मैं, आई एम नॉट सेइंग जोक. 2 से 2.5 लाख रुपया महीना का फिक्स खर्चा है. और अगर आप उसमें डेप्रिसिएशन वगैरह जोड़ोगे कि वी नीड टू रिप्लेस द कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा, ये चीजें कभी तो खराब होंगी, तो अगर उनका डेप्रिसिएशन भी पकड़ते हैं, बिल्डिंग का नहीं पकड़ते हैं, बिकॉज बिल्डिंग ऐसे कोई खराब नहीं हो रहा है. So if I will consider only the perishable assets, then in that case आप मोटा मोटी लाख रुपया और पकड़ लीजिए. यानी कि फिक्स खर्चा हमारे यहां 3.5 लाख रुपया करीब है, अगर आप डेप्रिसिएशन वगैरह को भी कंसीडर करते हो. तो इफ सपोज आई विल कलेक्ट इन अ मंथ ट्यूशन फीस 10 लाख सपोज, तो 10 लाख में 20%, 10 लाख में 20% तो गया जीएसटी एंड ऑल दैट, सो बचा 8 लाख. 8 लाख माइनस 3.5 लाख बैलेंस इज माई इनकम. अगर महीने में 10 लाख का ट्यूशन फीस आया, देन 10 लाख माइनस 3.5 लाख बैलेंस हमारा इनकम है. उसमें से कुछ आप एक्स्ट्रा समझ सकते हैं. यू कैन से कभी कभी कुछ अलग से इवेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, यू कैन से फर्दर मैक्सिमम 50, तो 50% सरप्लस है. इफ आई विल से दैट कि अगर मेरे को लॉस नहीं सहना है, ब्रेक इवन चाहिए, देन हाउ मच ट्यूशन फीस आई शुड बी कलेक्टिंग इन अ मंथ सो दैट आई विल नॉट बी सफरिंग लॉस. अगर मेरा 3,50,000 महीने का फिक्स खर्चा है, तो ट्यूशन फीस मंथली कितना आना चाहिए
so that I will not be suffering loss in Saraf Academy? Can anybody say? Why I am taking my example? Because मेरे को आप लोगों की कंपनी के बारे में पता नहीं है, ठीक है, दैट इज द स्टोरी हिमांशु. बट अगर कैलकुलेशन पूछे कि विद द कैलकुलेशन विच आई हैव गिवन यू, दैट इन माई केस दिस इज द स्टोरी, देन फॉर ब्रेक इवन हाउ मच ट्यूशन फीस आई शुड बी गेटिंग इन अ मंथ, सो दैट इन सराफ एकेडमी मंथली लॉस नहीं हो. बोलिए हिमांशु जी. अगर हम लोग सिंपल में सोचें, अलग अलग फीस, ट्यूशन की फीस अलग है, लेकिन एक स्टूडेंट अगर 100 रुपया देगा, 100 रुपीज ट्यूशन फीस, मेरे पास कितना बचेगा? इफ द स्टूडेंट विल गिव मी 100 रुपीज, देन व्हाट इज माई, आई एम लेफ्ट विथ 100 रुपीज फीस नहीं है, लेकिन आप 100 रुपए का हिसाब से समझिए. कंसिडर $100, 100 रुपीज like that. So if I am getting 100 rupees, then how much I will be left with? Can I say 80? अगर मेरे को 100 रुपया मिलेगा तो मेरे पास 80 बचेगा, बिकॉज 20 तो जीएसटी और वेरिएबल कॉस्ट गया, तो मेरे पास 80 बचा. तो अगर मेरे को 80 बचाना है, देन आई नीड 100 ट्यूशन फीस. सो अगर मेरे को 3,50,000 बचाना है, देन व्हाट इज द ट्यूशन फीस आई रिक्वायर? Because when I will be able to save 350, then I will be able to cover my fixed expenses. So 80 बचाने के लिए I need to have tuition fees of 100, sales value of 100. So 3,50,000 के लिए कितना? 3,50,000 divided by 80%. How much it will come? 3,50,000 divided by 80%. How much it will come? दैट मीन्स सराफ एकेडमी में अगर ट्यूशन फीस महीना में 4 से 4.5 लाख आएगा तो ब्रेक इवन होगा. मैं सच बात बोल रहा हूं, ये सब कहानी नहीं बना रहा. आई एम टॉकिंग फैक्ट्स. ओके, यू आर गेटिंग नॉलेज अबाउट माई बिजनेस. कि अगर मेरे पास ट्यूशन फीस महीना में 4 से 4.5 लाख रुपए करीब आएगा, देन आई विल बी एट ब्रेक इवन. नो लॉस, नो गेन. ठीक है. अब है कि मान लीजिए पर्सनली अगर लाइफ की बात करें, तो पर्सनली मान लीजिए जितना भी खर्चा है खाने पीने का, एंड यू कैन से स्टाफ, ड्राइवर, कार वगैरह का, सब मिला मिलू के यू कैन से खर्चा इज अराउंड इन अ मंथ, ऊपर से ऊपर अराउंड 1.5 लाख, अराउंड 1.5 to 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं है. यानी कि अगर मेरे पास 2 लाख रुपया ट्यूशन फीस और आए, तो 2 लाख इंटू 80% मेरा काम बन जाएगा. जो खर्चा महीना में करना है सब उतना ही है सर, इतना ही अपना लाइफ है. यानी कि इन प्लेस ऑफ 4 to 4.5, इफ इट इज कमिंग 6.5 अप्रॉक्स खर्चा. लेकिन आई नीड टू थिंक अबाउट रिटायरमेंट, कि आज 47 ईयर है, मान लीजिए 10 साल 15 साल बाद रिटायर करेंगे, उस समय कमा नहीं पाएंगे, या बच्चे हैं उनके लिए आगे के लिए सोचना है. इन्वेस्टमेंट शुड बी डन, maybe in share market, maybe in gold, maybe in property, maybe in government security, bank FD वगैरह. Normally I consider that any person, if you are earning 10,000, if you are earning 10 lakh, if you are earning 10 crore, 1/3 of your earnings should be going for future, for investment. जो भी आप पैसे कमाते हो उसमें से 1/3 आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. कहां पर, वो अलग बात है, वो आपके ऊपर है. तो अगर 2 लाख रुपया मान लीजिए ट्यूशन फीस चाहिए, तो 1 लाख उसके लिए भी चाहिए. अराउंड 7.5 to 8 लाख ट्यूशन फीस आना चाहिए. अदरवाइज सरवाइव नहीं कर सकते, अदरवाइज काम करके कोई फायदा नहीं है. एंड इफ इट इज कमिंग ग्रेटर देन 8 लाख, देन इट्स अ सरप्लस. देन यू कैन से दैट आई एम वर्किंग वेल, देन यू कैन से दैट आई एम डूइंग माई बिजनेस वेरी वेल. बिकॉज नॉर्मली मान लीजिए आप लोग कहीं काम करते हैं कि आपकी सैलरी अगर 50,000 है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, जो भी है, तो आपकी जो सैलरी होती है उसका 1/3 इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. आप जो भी तरह से खर्चे करते हैं वो 2/3 ही खर्चे में जाना चाहिए. 1/3 शुड बी फॉर योर फ्यूचर. तो जॉब में तो वैसे भी प्रोविडेंट फंड वगैरह ये सब पैसे कटते रहते हैं, तो अपने आप आपका रिटायरमेंट बेनिफिट बनते रहता है.
That is also a part of 1/3. But then you should be always allocating 1/3 of your income for investment purpose. मैं इतना यहां नहीं जाना चाह रहा, लेकिन एक नॉर्मली बात कर रहा हूं कि जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में there are fixed expenditures, there are variable expenditures, there is break even, I am talking, वैसा दुनिया में हर जगह है. आप भी जहां काम करते हो वहां भी है. क्या यह जानना जरूरी है कि नहीं? क्या हमें यह जानना जरूरी नहीं है कि if we want this much income, what should be the sale? If we do this, what will be the break even? How much surplus we are getting? How much surplus sale revenue we are getting? ये सब डिसीजन लाइफ में जरूरी है कि नहीं? आप बोलेंगे सर आप ये सब करते हो. सर दिमाग में करते, लिखते नहीं है कहीं कि इतना ट्यूशन फीस है. वो कैलकुलेशन, बिकॉज किसको टाइम है यार कि इस महीना कितना है, ये दिख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट मन में आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो लिख कर होता है. इफ यू आर वर्किंग इन ए स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ बजट, एनालिसिस, कॉस्ट बिहेवियर, सेल्स रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सब चीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में लिख कर होता है. इन वर्किंग यू आर डूइंग दिस. आपके घर में होता है, सब जगह होता है. इट इज नॉट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट सराफ एकेडमी, इट इज देयर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. तो आपको ये चैप्टर क्या समझाएगा? हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन, how to calculate margin of safety, that is sale beyond break even, how to calculate sales to generate a particular income, how to calculate break even for cash fixed expenses, how to calculate break even considering non cash depreciation also. If you are dealing in more than one product like ours, CMA, CIMA, ACCA, CPA, if you are dealing in more than one product, तब आप break even कैसे निकालोगे, तब आप income कैसे निकालोगे? Because if your cost will change, that will change maybe because of external factors, because of change in volume. And volume means production or sale. And the ultimate effect of this on the profit. इसका प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? आपको डिसीजन सही दिशा में लेना है, जिससे वेदर यू आर अ प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मैक्सिमाइजिंग. दैट इज इंट्रोडक्शन रिलेटिंग टू द टॉपिक कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस. मैंने अपना एग्जाम्पल केवल आपको समझाने के लिए दिया है, लेकिन आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे रहेगा यही. ब्रेक इवन निकालो, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दिस दैट एंड ऑल दैट. देन ब्रेक इवन इज अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट बाई यू कैन से, बट एक बार मैं अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज अगर बिजनेस चल रहा है तो सारे खर्चे ही फिक्स्ड है भाई. मेरा ऐसा तो है नहीं कि मैं बिजनेस कोई बंद करने वाला हूं. When we think that we are going to close this operation and all that, then we divide the fixed cost into avoidable, unavoidable. But अगर आपका बिजनेस नॉर्मली रनिंग है तो उसमें कोई अनअवॉइडेबल पोर्शंस नहीं होता है. बिकॉज आप ऐसा बोल सकते हैं, आई कैन लीव वन ऑफ द स्टाफ, आई कैन रिड्यूस माई रेंटल स्पेस, कर सकते. बट फिर इन अ नॉर्मल रनिंग बिजनेस वी डोंट कैटेगराइज द फिक्स कॉस्ट इनटू अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल. वो होता है, वो अलग केस में होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. यू कैन से इट इज फिक्स कॉस्ट, नॉट डिस्कसिंग फॉर द टाइम बिंग अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल. वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज इट इज इन मार्जिनल डिसीजन मेकिंग C2. Now, so for taking these types of short-term decisions, break even, profit, this, that, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉस्ट जानना कि विच कॉस्ट इज वेरिएबल, विच कॉस्ट इज फिक्स्ड. जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसको अगर थोड़ा टेक्निकली कन्वर्ट करते हैं कि अगर प्रकाश सराफ के पास 100 रुपए ट्यूशन फीस आती है तो 20 रुपीज इज वेरिएबल कॉस्ट. जीएसटी एंड 2% एक्स्ट्रा मान लीजिए 20%. और क्लास में बात करने में भी वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर एट 20. तो अगर प्रकाश सराफ के पास 10 लाख रुपए ट्यूशन फीस आई सराफ एकेडमी तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ? इफ द ट्यूशन फीस इन सराफ एकेडमी इन अ मंथ इज 10 लाख, देन व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट?
2 लाख। आपने क्या किया, 10 लाख इंटू 20%, 10 लाख इंटू 20%, 20% is variable cost percentage on sale. So if the sale is 10 lakh, then 10 lakh into 20%, 2 lakh is variable cost. यानी कि वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सेल्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज, सेल्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। सपोज आई एम एन ऑर्गेनाइजेशन जो मैं केवल सीएमए यूएस पढ़ाता हूं, मान लीजिए मैं ऐसा हूं जो केवल सीएमए यूएस पढ़ाता हूं और फीस है 60,000, 58 को एक बार भूल जाते हैं, 60,000, तो 60,000 का 20% 12,000. So can I say that variable cost per student in Saraf Academy 12,000? In place of saying 20%, can I say variable cost per student in Saraf Academy 12,000? Can I say? If I will say that in Saraf Academy I am teaching only IMA, CMA, US और स्टूडेंट से फीस चार्ज करते हैं 60,000, 20% मतलब 12,000, हर एक स्टूडेंट का वेरिएबल कॉस्ट 12,000. Can I say 12,000? In many organization in place of percentage this is more relevant. Why? मेरे केस में थोड़ा झमेला है, but normally if you talk about any organization producing a particular product, तो प्रोडक्ट का हर यूनिट बनाने में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स विल बी देयर. हर यूनिट बनाने में, सपोज 1 यूनिट बनाने में मटेरियल 2 kg, 2 यूनिट बनाने में 4 kg, 3 यूनिट बनाने में 6 kg, 4 यूनिट बनाने में 8 kg, 5 यूनिट बनाने में 10 kg, 1 यूनिट बनाने में लेबर आवर 5, 2 यूनिट बनाने में 10 आवर, 3 यूनिट बनाने में 15 आवर. ऐसा बहुत सारा खर्चा है जो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हर एक यूनिट पे लगेगा. Then we can say variable cost per unit also. We can say variable cost as a percentage of sale also. We can say variable cost as a per unit basis also. Even in a service industry also, we can say variable cost per unit. Not only manufacturing. वो depend करता है nature of business वगैरह. But that is sure. When the sale quantity or sales value will increase, then variable cost will increase. When the sales quantity or sales value will decrease, then variable cost will increase. Actually, we say that they are directly proportional. If the sale will increase by 10%, variable cost will increase by 10%. If the sale will reduce by 10%, variable cost will reduce by 10%. Whether it is 10 unit, whether it is per unit, whether it is percentage, but ये sure है कि when the sale will go up and go down in a particular percentage, then variable cost will also go down and go up with the same percentage. अगर आपका सेल क्वांटिटी या सेल वैल्यू 50% से बढ़ेगा तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी 50% से बढ़ेगा. You will say, sir, it is not sure. I am also saying not sure. मान लीजिए मैंने सेल प्राइस बढ़ा दिया, ट्यूशन फीस 58 के बदले 65 कर दिया, तो क्या जरूरी है क्या कि खर्चा भी बढ़ेगा? मेरे केस में 20% बढ़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली रॉ मटेरियल भी बेसी लगेगा, लेबर आवर, ऐसा नहीं होता है. बट वी आर टॉकिंग शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म मीन्स व्हाट? We are talking for 1 month, 2 months, 6 months, maximum 1 year. So in short term, the assumption is that when the sale will increase by 20%, variable cost will also increase by 20%. That means जो मैं ये बात बोल रहा हूं कि नहीं बढ़ेगा, ये ऐसा होगा नहीं. Problem remaining silent, we will assume variable cost is directly proportional to sales. Sale going up, going down by a particular percentage in quantity and value, then variable cost will also be going up, going down in the same percentage. Because we are discussing short term. बहुत कुछ है. बिकॉज अगर हम लोग शुरू में काम करना चालू किए,
अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मटेरियल वेस्टेज हो रहा है, बाद में मटेरियल बचने लग गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मेनी थिंग्स आर देयर, बट वी आर एज्यूमिंग सेक्ट्रिस पैरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वी आर डिस्कसिंग शॉर्ट टर्म। अभी जब मैंने 5 मिनट से चालू किया, मैं थोड़ा टेक्निकल बोल रहा हूं, टेक्निकल। उसके पहले जब मैंने बोला था तो मैंने कोई टेक्निकलिटी नहीं बोला, मैंने जनरली बिजनेस की भाषा बोली, लेकिन टेक्निकल भी तो समझना पड़ेगा ना, बिकॉज इन द क्वेश्चंस इट विल नॉट बी फॉर सराफ एकेडमी, देयर आर मिलियंस टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, द क्वेश्चन विल बी डिजाइन्ड इन दैट। सो थोड़ा टेक्निकल भी बनना पड़ेगा प्रैक्टिकल के साथ, कि द वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्स। If the sales quantity or the sales value goes up, goes down, variable cost will also be going up, going down with the same percentage. Directly proportional. मैंने बोला फिक्स कॉस्ट, सैलरी, रेंट, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, मैंने बोला मेरे केस में ये जो हमने जूम का सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है, इसमें हमने सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है लिमिट 100, ट्रिपल डिजिट इज 99, 100 नहीं 99, मतलब लाइव क्लास में 99 लोग एक साथ क्लास कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए लाइव क्लास करने के लिए जनरली स्टूडेंट 99 के ऊपर हो गए, 100, 150, 200, ट्रिपल डिजिट से कम, तो जूम का सब्सक्रिप्शन चार्जेस बढ़ जाएगा। इवन दो जूम सब्सक्रिप्शन इज जस्ट फॉर कनेक्टिंग, बिकॉज ये सब तो मेरा अपना सॉफ्टवेयर है जिससे आप क्लास देखते हो, वीडियो देखते हो, इट इज नॉट जूम। I am not using Zoom platform internal system for giving the classes. Zoom केवल ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए, चैट करने के लिए, लेकिन उसके अलावा मेरा ये सब पर्सनली खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। सो आई मीन टू से दैट कि Zoom का सब्सक्रिप्शन है इन वन केस 99। तो अगर नॉर्मली बैचेस में लाइव क्लासेस आर बीइंग डन बाय 100+, 100 और 100+, तो मेरा Zoom का सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा, एंड इट इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। डबल डिजिट में कम है, ट्रिपल डिजिट स्टूडेंट्स में बहुत बढ़ जाता है। तो अगर 100 होगा तो भी बढ़ेगा, 200 होगा तो भी, अलग अलग नहीं। यू कैन से दैट माई जूम सब्सक्रिप्शन इज फिक्स्ड, बट देन जूम सब्सक्रिप्शन इज फिक्स्ड व्हेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद इन 99 इन एनी लाइव बैच। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बियॉन्ड 99 टिल 999, ट्रिपल डिजिट तक, then the Zoom subscription will increase. Now the question arises that कि whether that is going to happen every day. आज 99 के बदले 100, कल 200, परसों 500, फिर 5000, ऐसा थोड़ी ना होता है, किसी भी कंपनी में नहीं होता है। In short run, you are going to operate within your capacity. मेरा कैपेसिटी है डबल डिजिट स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लासेस। तो शॉर्ट रन एक साल में 2022 में मेरा स्टूडेंट्स लाइव में 99 के अंदर ही रहेगा। इवन व्हेन वी आर टेकिंग क्लासेस ऑन ट्यूसडे, फ्राइडे, आई थिंक देयर आर 124 स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली, ACCA, सीमा, CMA मिलाकर। लेकिन आपने देखा होगा कितने लोग लाइव करते हैं, अराउंड 20, वो भी अभी 3-4 क्लास हुई है, इसलिए अभी और 1-2 क्लास होने दीजिए, आपको दिखेगा 10। आज आप लोग की क्लास है फर्स्ट, तो इसमें ज्यादातर CMA है, अराउंड 37-38 स्टूडेंट्स, 3-4 ठो CPA भी है, तो अराउंड 42-45 स्टूडेंट्स हैं। उसमें से लाइव कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी 3-4 सैटरडे जाएंगे तो आपको दिखेगा 1 या 2 लाइव, बिकॉज आई से ऑलवेज 10 to 15% आर लाइव। फर्स्ट फ्यू क्लासेस स्टूडेंट्स आर लाइव, बट उसके बाद वो रिदम खो देते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि वो पढ़ तो पा नहीं रहे हैं, क्लास के साथ दौड़ नहीं रहे हैं, क्या फायदा है, सर पूछेंगे, सर डंडा मारेंगे, दिनेश बोलेगा कि सर आप स्कोल्ड करेंगे, तो नॉर्मली मैं स्कोल्ड नहीं करूंगा। आई एम नॉट सेइंग, आई एम जस्ट सेइंग कि ये मेरा सर 30 सालों का एक्सपीरियंस है, लाइव नहीं, फेस टू फेस में भी, कि स्टूडेंट क्लास के अंदर 20% से ज्यादा कभी नहीं आएगा। तो अगर 124 है, मान लीजिए स्टूडेंट और ज्वाइन कर लिए, बीच में बैच आगे बढ़ते बढ़ते 150 हो गए, हो जाते हैं, तो 150 का भी 20% 30 है। 30 से ज्यादा लाइव कभी नहीं आने वाला है सर। उसमें से जेन्युइन प्रॉब्लम कम से कम 5-7 को होगा, उसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही प्रॉब्लम है, सुबह कौन उठे,
सुबह क्लास कौन करे? और सर तो पूछते हैं, सर तो क्लास में आंसर देने बोलते हैं, सर तो डंडा मारते हैं, स्कोल्ड करते हैं। बेटर है सर नहीं करें क्लास। कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं तो मजाक कर रहा हूं। आई अंडरस्टूड यू, वी आर नॉट सेइंग लाइक दैट। बट मेरा क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा इंगेजमेंट नहीं करूंगा क्लास में, तो कैसे समझ में आएगा कि आर यू गेटिंग अंडरस्टैंडिंग द वे आई एम सेइंग? कोई सो रहा होगा, उसको जगाने के लिए उसको पूछ लिए, तो जनरली कोई बोलेगा सर मेरा माइक ठीक नहीं है। यार क्या माइक ठीक नहीं है? क्यों नहीं है ठीक? क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर आपको कुछ समझा ही नहीं पा रहे हैं तो क्लास करके फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट? पैसा ले लिए, रख लिए, हो गया। आपको कोई ज्ञान ही नहीं दिए, कोई बुद्धि नहीं दिए, क्या फायदा यार? आई डोंट लाइक दैट। मे बी समटाइम्स स्टूडेंट में टेक इट अदरवाइज, कभी कभी ले लेता है, बट उसको क्लास में बैठना है तो पूरा का पूरा एनर्जी के साथ बैठना होगा। ही हैज टू इंगेज इन द क्लास। इसीलिए आप सोचेंगे सर आप किसको किसको, बिकॉज मैं देखते रहता हूं किसको पूछना है, कौन कुछ जवाब नहीं दे रहा है, चुन चुन के पूछता हूं मैं सर। आप बोलेंगे सर आप मेरे से कम पूछते हैं, मेरे को पता है आप बोल दोगे ना, क्योंकि इवन दो आई कैनॉट सी यू, बट दिल से यहां से दिख रहा है दिल यार। So Ravi always say I am, sir, I cannot speak. But then the question comes, Ravi, कि if you don't say in the class, and later on when I am taking the mock test, the results is not good, not writing, तो फिर तो दिख रहा है ना कि गड़बड़ है। Even though you were doing the classes, but the output I am not getting. ये तो मैं सबको बोलता हूं सर, कि लाइव क्लास में जो मजा है वो रिकॉर्डिंग में कभी नहीं है सर। और इसीलिए अपने तो जीवन भर मरते दम तक लाइव है, जब तक जान में दम है। कि इवन दो यार पार्ट 2 यार 50 बार पढ़ा लिए यार, सेम चीज ही तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पुरानी क्लास खोलेंगे, जो कॉमा फुल स्टॉप बोला वो कैसे याद आएगा? नया फीलिंग, नया जोश। और मैं बहुत पढ़ता हूं, बिलीव मी। एवरी डे आई गिव माई टाइम 2 to 3 hours इन स्टडी। मे नॉट बी एग्जैक्टली दिस सीवीपी, बट मार्केट में क्या चल रहा है, इलेक्शन क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, सब कुछ पढ़ने का आदत है सर, मजा आता है। आई ऑलवेज रीड, और बहुत सारे न्यूज ऐप वगैरह डाउनलोडेड है, शेयर मार्केट में कैसा चल रहा है। मे बी इन्वेस्टमेंट हर दिन नहीं करना है, आई एम नॉट इन्वेस्टर, नॉट अ ट्रेडर, बट फिर भी सब चीज का नॉलेज चाहिए यार। आई ऑलवेज थिंक दैट उसका पैसे से कोई मतलब नहीं है, कि भाई कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी कुछ डिस्कशन हो रहा है, कुछ उसमें कंट्रीब्यूट कर पाए, कुछ बोल पाए। एंड दिस इज नॉट रिलेटेड विथ एनी कोर्स और डिग्री, दिस इज रिलेटेड पर्सनल डेवलपमेंट, बिकॉज नहीं तो मन को अच्छा नहीं लगता है। सो आई मीन टू से दैट, बिकॉज इफ यू आस्क मी सीएमए यूएस पढ़ाने के लिए मेरे को 1 सेकेंड, इवन हिमांशु आई सेड दैट जनरली आई डू स्टडी, मैंने आपको पढ़ाने के लिए 5 मिनट एक बार गो थ्रू किया था, केवल 5 मिनट्स टुडे, कि भाई सीवीपी के अंदर क्या है, क्या एरिया, एक बार फिर से ध्यान देने क्या पढ़ाना है। बट आई डोंट नीड टू रीड सीएमए यूएस सिंगल थिंग मोर देन 5 मिनट्स टू टीच एनी क्लास। कि ज्ञान अगर 10 है तो मेरे को 100 आता है, तो उतना ज्ञान तो मैं क्लास में दे ही नहीं पाऊंगा यार, दैट मच तो आई कैनॉट स्पीक। सो इंस्टीट्यूट बोलता है कि मटेरियल खरीदना पड़ेगा, मेरे को चोट लगती है यहाँ यार, काहे को खरीदना पड़ेगा मटेरियल? व्हाई द स्टूडेंट विल वेस्ट देयर मनी? दे डोंट अंडरस्टैंड यार। अब वो क्या है कि बंदर के गले में घंटी कौन बांधे, नहीं संभव है। आई वॉन्ट दैट आई विल बिकम सो गुड दैट दे विल बी टेलिंग दैट सर ओनली इन योर केस एक्सेप्शन मटेरियल नॉट टू बी परचेज्ड। मेरे को वहां पहुंचना है, क्योंकि दिल को लगता है। कोई कोई स्टूडेंट बोलता है सर यू आर नॉट IMA मेंबर। अरे यार बार बार मैंने वीडियो में बोला है, अपलोडेड है, किसी तरह से नहीं सुनना है तो क्या होएगा? ठीक है, नो इश्यू, लेट्स प्रोसीड। सो आई एम सेइंग दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज बेस्ड ऑन कैपेसिटी। इफ यू ब्रीच योर कैपेसिटी देन फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज, बट वो कैपेसिटी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हर समय ब्रीच नहीं करती। अपने ऐसा मान के चल रहे हैं, इन शॉर्ट रन दैट कैपेसिटी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, दैट कैपेसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो इन दैट कैपेसिटी दैट कॉस्ट इज फिक्स्ड। सो अगर आपका प्रोडक्शन और सेल 10% मोर, फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम। अगर योर प्रोडक्शन और सेल 10% लेस, फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम। मेरे केस में ऐसा ही है,
जितने स्टाफ है वो मिनिमम है, उससे नीचे नहीं जा सकती। अगर पियोन है, काउंसिलर है, अकाउंटेंट है, जो है वो सब मिनिमम है। अगर स्टूडेंट कम भी आएंगे तो भी उतने को रखना पड़ेगा। हाँ, यू कैन से मोर व्हेन द स्टूडेंट बिकम्स 50% प्लस, देन आई नीड मोर स्टाफ। बट अगर स्टूडेंट 10-20% बढ़ते हैं, मेरे को और आदमी नहीं चाहिए। आई मीन टू से दैट 50% स्टूडेंट क्या हर दिन थोड़ी ना बढ़ेगा यार। इट डजंट हैपन इन एनी बिजनेस। Fixed cost change based on capacity change, but it happens in long run. We are talking short run. So variable cost is directly proportional to sale or production. Fixed cost is fixed. आपका वो change नहीं हो रहा है. But there is one another category which is called semi variable. हमारे केस में भी बहुत सारे semi variable cost हैं. Suppose I will say telephone, electricity. आप बोलेंगे सर अभी आपने इनको वेरिएबल बोला था या फिक्स्ड बोला था, आप सेमी वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? यू अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड. इफ यू कंज्यूम द यूनिट्स बिटवीन दिस स्लैब, रेट इज दिस स्लैब रेट इज दिस स्लैब रेट इज दिस. टेलीफोन चार्जेस अगेन बेस्ड ऑन कंजम्पशन, कि टेलीफोन के अंदर अगर आपने इतना कॉल किया है तो मिनिमम ये चार्जेस है, इसके बीच में अगर कॉल किया है तो ये चार्जेस है. तीसरा, somebody was saying काउंसिलर, काउंसिलर को हम मान लीजिए महीना में फिक्स सैलरी दे रहे हैं 15,000 रुपए, और उसको बोले हर एक स्टूडेंट कन्वर्जन पे तेरे को 500 मिलेगा. तो सपोज इन अ मंथ ही और सी कन्वर्टेड 20 स्टूडेंट्स, सो 20 इंटू 500 एंड प्लस 15,000, दैट इज द सैलरी. 15,000 इज फिक्स पोर्शन and 500 is a variable portion, because 500 will be given to the counselor on every student conversion, on every student joining the course with Saraf Academy. तब उसको 500 रुपए मिलेंगे. तो वो 500 is variable. Counselor cost is semi variable where fixed and variable can be separately identified. But electricity, telephone, इसमें variable और fixed अलग अलग पता नहीं चल पा रहा है. बट ये फिक्स भी नहीं है और वेरिएबल भी नहीं है. देयर आर सेमी वेरिएबल कॉस्ट विच हैव अ नेचर विच यू कांट सेग्रीगेट देम इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड, एंड देयर आर सम वेरिएबल कॉस्ट लाइक काउंसिलर कॉस्ट विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू वेरिएबल पोर्शन एंड फिक्स पोर्शन. अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा कॉस्ट है, ये देखना पड़ेगा. अपने को ये मालूम है कि if I want to achieve break even, then I gave the example of Saraf Academy, then I said 20% is my variable cost, 80% is my balance which is called contribution. सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से बैलेंस इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन. सो इफ 20% ऑफ सेल इज माई वेरिएबल कॉस्ट, 80% is my contribution. For 80% contribution, I want 100 sale. For $80 contribution, I want sale of $100. So for covering fixed cost, because if the contribution will cover fixed cost, then I will achieve break even. For $80, I want $100 sale. For 3,50,000, I want 3,50,000 divided by 80%. Divided by 80 into 100, unitary method. आपको $80 का कंट्रीब्यूशन के लिए $100 का सेल करना है, तो 3,50,000 का कंट्रीब्यूशन के लिए कितना सेल करना है. या अगर मैं बोलूंगा कि मेरे यहां पर केवल सीएमई की क्लासेस होती है, तो एक स्टूडेंट से 12,000 का वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि एक स्टूडेंट से 48,000 कंट्रीब्यूशन. तो अगर एक स्टूडेंट से 48,000 कंट्रीब्यूशन, सो 3,50,000 कितने स्टूडेंट से, कि अगर महीना में 3,50,000 फिक्स कॉस्ट है, सो 3,50,000 के लिए कितने स्टूडेंट चाहिए. 48,000 एक स्टूडेंट से बचेगा एक से. सो 3,50,000 फिक्स कॉस्ट बचाने के लिए कितना स्टूडेंट चाहिए. 3,50,000 डिवाइडेड बाई 48,000, हाउ मच इट विल कम, 7 to 8 स्टूडेंट्स. कि अगर महीना में 7 से 8 स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो ब्रेक इवन हो जाएगा. यू कैन कैलकुलेट ब्रेक इवन इन क्वांटिटी, you can calculate break even in value. 3,50,000 you need to know fixed cost.
If you divide 3,50,000 by 80%, 80% is what? Contribution percentage. Then it will give you sales value. 3,50,000 by 80%, 4,37,500. If you divide 3,50,000 by 48,000, with 1 unit we are getting 48,000. With how many units we will be getting? 3,50,000. So 3,50,000 divided by 48. Numerator is fixed cost. Denominator is contribution percentage 80%, or denominator is contribution per unit. If you divide by contribution percentage, you are getting break-even sales value. If you divide by 48,000, 1 unit contribution, then you are getting number of units, 7 to 8 units. 7 to 8 units into 60,000 will give you 4,37,500 only. यानी कि ब्रेक इवन निकालने के लिए क्या चाहिए? मेरे बिजनेस में, आपके बिजनेस में, कहीं भी ब्रेक इवन निकालने के लिए क्या चाहिए? To calculate break even in any organization, what we want? To calculate break even in any organization, what we want? Fixed cost and contribution. Contribution means variable cost. यानी कि अगर आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट निकालना आता है तो आपको ब्रेक इवन निकालना आता है. आप बोलेंगे सर बुक्स में ब्रेक इवन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन परसेंटेज. आप फॉर्मूला को 500 बार रट लीजिए, एक सम भी सॉल्व नहीं होने वाला है, एक सम भी. वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी फॉर्मूला. अगर मन में ये सोचेंगे कि फॉर्मूला है तो सम तो होना नहीं है. Maybe you are getting the concept, there is no formula. I have to started with my simple example. मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल चालू किया एक कंपनी सराफ एकेडमी के बारे में. आप कहीं पर भी जाओगे, कुछ भी करोगे, ऐसे ही होएगा कि फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए कितनी सेल होनी पड़ेगी. तो जब आप सेल करेंगे वेरिएबल कॉस्ट चला जाएगा, आपके पास कंट्रीब्यूशन बचेगा. वो कंट्रीब्यूशन इतना होना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट को कवर कर दे. देन इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन. That contribution should be such that it cover the fixed expenses. और जब वो कंट्रीब्यूशन 437,500 सेल हो गया, फिक्स कॉस्ट कवर हो गया 350. अब 437,500 के बाद 100 रुपए के सेल और हुआ, तो 100 रुपया पे 80%, $80 कंट्रीब्यूशन और आया. वही इनकम है. फिक्स कॉस्ट के बाद योर कंट्रीब्यूशन इज प्रॉफिट. फिक्स कॉस्ट तक कंट्रीब्यूशन इज कवरिंग फिक्स, माने ब्रेक इवन तक कंट्रीब्यूशन इज कवरिंग फिक्स कॉस्ट. जैसे ही आप ब्रेक इवन के ऊपर सेल करेंगे तो कंट्रीब्यूशन इज प्रॉफिट. मतलब मान लीजिए इस महीना में सेल ऑलरेडी 10 लाख हो गया, ठीक है, यानी कि ऑलरेडी इस जून महीना में ब्रेक इवन आ ही चुका, फायदा हो चुका. तो आज अगर कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है 58,199 में, तो वो जो पैसे देगा उसमें से 80% पूरा इनकम है, कोई खर्चा नहीं है. 58,000 जो मिलेगा उसका 80% पूरा इनकम है, कोई खर्चा नहीं है. तो अगर वो कम पैसा भी दे तो मेरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज इनकम सीधा सीधी है. बट मैं एक पैसे भी कम नहीं लूंगा. क्यों? बिकॉज फिर हिमांशु दिनेश से कम क्यों उतना ही लिया? क्या हिमांशु और दिनेश ने पाप किया था? When you are selling same product in the same market to same type of customer, same thing, same quality, you can't charge different prices. Prices different कब होता है? Export, domestic, wholesale, retail, क्वांटिटी, वॉल्यूम, क्वालिटी ऑफ द गुड्स तब अलग होता है. आप एक ही मार्केट में एक ही प्रोडक्ट, एक ही क्वालिटी का 2 जन को अलग अलग दाम में ऑफर नहीं कर सकते. दैट इज नॉट पॉसिबल. बट मैंने जो बोला कि आप नॉर्मली किसी के भी वेबसाइट पे जाएंगे, सब पे ट्यूशन फीस नहीं लिखी हुई है, सारा लिख दिया, ट्यूशन फीस नहीं. ट्यूशन फीस आप कॉल करेंगे और वो चेहरा देखकर आपकी ट्यूशन फीस डिसाइड करेंगे. 99% which I don't like in education industry, कि मेरे को लगता है education is not something we should be cheating, it should be purely open ended thing. but normally ऐसा है. मैं नहीं बोल रहा, मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं. you see, you will analyze कि education के अंदर ऐसा नहीं. जब आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में ट्यूशन फीस क्या बाद में पता चलती है? पहले से लिखा नहीं रहता है. कॉलेज में जाते हैं, कोई MBA यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, तो क्या फीसेस नहीं? तो फिर ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग में ऐसा क्यों नहीं?
क्यों ऐसा? क्योंकि कंफ्यूज करना है, बेवकूफ बनाना है। तो बेवकूफ बनाना है, कब तक दुनिया बेवकूफ बनेगी, कब तक लोग बनाते रहेंगे? इट्स अ क्वेश्चन मार्क। आई मीन टू से दैट जब भी आप ब्रेक इवन निकालेंगे तो आपको वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट पता होना चाहिए, नहीं तो आप ब्रेक इवन नहीं निकाल सकते। अगर मैं बोलूंगा सराफ एकेडमी 5 लाख इनकम कमाना चाहती है, 5 लाख प्रॉफिट इन अ मंथ, तो सराफ एकेडमी में 3,50,000 तो महीना का फिक्स कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट के बाद हमें 5 लाख इनकम भी कमाना है, तो टोटल में कितना होएगा? 8,50,000। 3,50,000 भी हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए, एंड देन 5 लाख चाहिए हमें इनकम। जब हम 100 रुपया का सेल करेंगे तो $80 बचेगा। $80 क्या है? कंट्रीब्यूशन। $100 सेल, 80% $80 कंट्रीब्यूशन, और ये 3,50,000 और 5 लाख कंट्रीब्यूशन ही है। फॉर ब्रेक इवन 3,50,000 इज कंट्रीब्यूशन, बियॉन्ड ब्रेक इवन वॉट एवर कंट्रीब्यूशन इज इनकम। तो जैसे मैंने ब्रेक इवन के लिए बोला $80 कंट्रीब्यूशन, सेल रिक्वायर्ड $100, 3,50,000 कंट्रीब्यूशन, सेल रिक्वायर्ड 3,50,000 by 80%। वैसे ही $80 कंट्रीब्यूशन, सेल रिक्वायर्ड 100, सो $8,50,000 कंट्रीब्यूशन, सेल रिक्वायर्ड 8,50,000 डिवाइडेड बाई 80%। अगर मेरे को 5 लाख कमाना है तो मेरे को सेल कितना करना होगा? 5 लाख प्लस 3.5 लाख डिवाइडेड बाई 80%, 5 लाख प्लस 3,50,000 डिवाइडेड बाई 80%। दिस इज नॉट अ फॉर्मूला। I am saying whenever I will sell, I will get out of $180 contribution. To generate 5 lakh income, I require contribution 350 plus 5 lakh, which is 8,50,000. For $80, 100 is the sale. For 8,50,000, what is the sale? मतलब break even के लिए I need to divide fixed cost by 80%. तो income के लिए I need to divide fixed cost plus income divided by 80%. ब्रेक इवन के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई 12,000, इनकम के लिए फिक्स कॉस्ट प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाई 12,000, उससे यूनिट्स आ जाएगा। न्यूमरेटर वही रहेगा, डिनोमिनेटर में अगर कंट्रीब्यूशन परसेंटेज लेंगे तो वैल्यू, डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे तो यूनिट्स। अगर मैं केवल 5 लाख को डिवाइड दूं, 5 लाख बाई 80%, 5 लाख बाई 12,000, वो क्या आएगा? वो आएगा ब्रेक इवन के ऊपर वाला सेल। वो भी सेल है, नॉट टोटल सेल। इफ आई एम टेकिंग 3,50,000 प्लस 5 लाख बाई 80%, then I am getting total sale. But if I am taking only 5 lakh divided by 80%, then I am getting sale beyond break even. मान लीजिए 10,62,000 हमारा टोटल सेल है, ब्रेक इवन सेल 4,37,000, so 10,62,000 minus 4,37,000, एक्स्ट्रा सेल अराउंड 6 लाख, यानी कि सराफ एकेडमी में 6 लाख का सेल एक्स्ट्रा है। अगर 6 लाख का सेल सराफ एकेडमी में एक्स्ट्रा है तो क्या सराफ एकेडमी में कोई भी महीना में लॉस हो सकता है क्या? अगर हमारे यहां ब्रेक इवन के ऊपर 6 लाख का सेल एक्स्ट्रा है तो क्या सराफ एकेडमी में कभी भी लॉस हो सकता है? 6 लाख एक्स्ट्रा के बदले 5 लाख हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, लेकिन ब्रेक इवन बहुत नीचे है। लेकिन मान लीजिए मेरे यहां पर सेल है 5 लाख, ब्रेक इवन 437, सेल है 5 लाख, सो एक्स्ट्रा सेल ओनली 60,000, तो कभी भी लॉस हो सकता है। द लॉस चांसेस आर देयर। I mean to say that in any organization, when the sale beyond break even is very high, that organization will never suffer loss. That sale which is beyond break even in technical language called margin of safety. Margin of safety means sale beyond break even. Why the word is margin of safety? Safety के लिए इतना. So if safety के लिए it is high amount, the organization is very good. You should invest in that organization. You should buy their shares. You should supply them goods and services. आपको उसी को लोन देना चाहिए. आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन से रिश्ता नाता रखना चाहिए.
So organizations calculate margin of safety also. For break even, 3,50,000 is the numerator. For total, 3,50,000 plus 5 lakh divided by 80%. For only margin of safety, 5 lakh by 80%. In all the three cases, that can be divided by 48,000 to get the units. Numerator same rahega, but denominator, if you divide by 80%, it will give you sale value. If you divide by contribution per unit 48,000, it will be giving you units. These are the three formulas written in CVP in every books. For break-even, fixed cost divided by contribution percentage, fixed cost divided by contribution per unit. For a particular income to be generated, fixed cost plus income divided by 80%. For only margin of safety, profit divided by 80% or profit divided by 48,000. These are formulas. I don't consider never these as a formula. Because जब तक मैं ये फॉर्मूला सोचूंगा तब तक आंसर नहीं होएगा. जैसे ही क्वेश्चन आएगा आई विल नॉट बी एबल टू अप्लाई माई ब्रेन. क्वेश्चन में सबसे प्रॉब्लम बात क्या है? फॉर्मूला जो है सो है, बट वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट इजी से देता नहीं है, घुमा घुमा के देता है जलेबी के जैसे. दे विल नॉट से दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज अ फिक्स कॉस्ट. अपने आप बुद्धि लगाना पड़ेगा. कैसे? सपोज दे आर सेइंग if 1,000 units are produced and sold, this is the cost breakup. If 1,200 units are purchased and produced and sold, this is the cost breakup. Same product का 1000 और 1200 दोनों का डिटेल दिया है. 1,000 होने से one particular cost each $10,000. 1,200 होने से that particular cost each $12,000. 1,000 units होने से that particular cost, one particular cost is $10,000. और 1,200 units होने से that particular cost is $12,000. So whether this cost is variable or fixed. अगर हम 1,000 यूनिट बनाकर बेचेंगे कॉस्ट है $10,000. अगर हम 1,200 यूनिट्स बनाकर बेचेंगे कॉस्ट है $12,000. तो ये जो कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं ये वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स कॉस्ट है? क्वेश्चन में नहीं बोला है कि ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, आपको अपने आप पता लगाना है. हम लोग क्या बात किए थे? वेरिएबल कॉस्ट पता लगाने के लिए कैसे पता चलेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. व्हेन द सेल इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय 5%, द कॉस्ट विल ऑल्सो एग्जैक्टली चेंज बाय 5%. तो अगर आपका सेल 1000 के बदले 1220% ज्यादा, तो अगर आपका कॉस्ट देखें तो वो भी तो 10,000 के बदले 12,000 20% ज्यादा. आप बोल सकते हैं पर यूनिट 10,000 बाई 1,000 $10, 12,000 बाई 1,200 $10. पर यूनिट सेम रहेगा. वेरिएबल कॉस्ट अगर एक स्टूडेंट पे 12,000, 2 पे 24, 3 पे 36, पर यूनिट 12,000. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम. वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू सेल. सो या तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए या पर यूनिट निकाल लीजिए, दोनों सेम आ रहा है. एक और दूसरा कॉस्ट, 1,000 यूनिट्स बनाने से 3,500, 1,000 यूनिट्स बनाने से 3,500, 1,200 बनाने से 4,200, 1,000 बनाने से 3,500, 1,200 बनाने से 4,200. ये कौन सा कॉस्ट है? क्यों? Why it is variable? 1,000 बनाने से $3,500, 1,200 बनाने से $4,200. इसमें भी मैंने 3,500 को 20% बढ़ाकर 4,200 बोला है मुंह में कैलकुलेशन करके. 1,000 के लिए 3,500 पर यूनिट 3.5, 4,200 डिवाइडेड बाई 1,200 इज ऑल्सो 3.5. नॉट चेंज इन स्केल. The first one may be material, this is labor, this is something else. हर कॉस्ट बराबर थोड़ी ना होएगा, but both are variable. Both are variable cost. It is not a question of change in scale. At two different levels, when the cost details are given, which cost is variable, how we will come to know. अगर आपको क्वेश्चन में 2 कॉलम में डिटेल दिया हुआ है और बहुत सारे कॉस्ट लिखे हुए, कौन सा कॉस्ट वेरिएबल है कैसे पता चलेगा?
या तो आप निकाल लीजिए द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट, या पर यूनिट निकाल लीजिए, दोनों कॉलम में पर यूनिट सेम आएगा. इफ इट इज नॉट कमिंग पर यूनिट सेम, इट इज नॉट अ वेरिएबल. इफ इट इज नॉट चेंजिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज नॉट अ वेरिएबल. बट अगर 1000 यूनिट्स होने से 5000 और 1200 होने से 5000, तब कौन सा? If we produce 1000, then it is 5000. If we produce 1200, then also it is 5000. Then which cost? Fixed. वो फिक्स्ड क्या जो चेंज हो जाए? दोनों लेवल पे द अमाउंट इज सेम. दोनों लेवल पे द अमाउंट इज सेम. फिक्स्ड. 1000 यूनिट्स होने से 4000, 1200 होने से 4500, 1000 होने से 4000, 1200 होने से 4500. Which is this cost? It is actually variable and fixed both, because it is not 44,000 same, it is not 20% more per unit same, so ये सेमी वेरिएबल. हम लोग क्वेश्चंस करने के टाइम पे ये मानते हैं, we assume, presume that 1000 में 4000 और 1200 में 4500. This is not variable, this is not fixed, semi variable, semi fixed दोनों है. 4000 के अंदर there is some portion fixed, there is some portion variable. 4500 के अंदर there is some portion fixed, there is some variable. दोनों में है. लेकिन फिक्स पोर्शन 4000 में और 4500 के अंदर सेम है. Whatever the fixed portion is there, that amount is same within 4000 and within 4500. वो दोनों में सेम है. कितना मेरे को आपको नहीं मालूम है. We don't know, but that much we know कि in 4000 whatever is the fixed portion, in 4500 the same fixed portion is there. Then why the cost has changed? जब दोनों के अंदर फिक्स पोर्शन बराबर है, then why the cost has changed? Because of variable cost. 4000 के अंदर फिक्स्ड और 4500 के अंदर फिक्स बराबर है. 4000 से 4500 500 क्यों बढ़ा? 4000 के बदले 4500. Why the 500 cost has gone up? Variable cost. When the variable cost will go? When the production will go? 1000 के बदले 1200. जब आपने 200 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाया तो आपका 500 एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट. 200 का वेरिएबल कॉस्ट 500. व्हाट इज पर यूनिट? 200 का एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट 500. व्हाट इज पर यूनिट? 2.5. नाउ यू चेक. For 1000 units variable cost, 1000 into 2.5, 2500. So 4000 minus 2500, 1500 fixed. Similarly for 1200, 1200 into 2.5 variable. 1200 into 2.5 is how much? 3000. 4500 minus 3000 fixed is how much? 1500. यानी कि in 4000, 2.5 is variable, 1500 is fixed. In 4500, 2.5 per unit is variable, 1500 fixed. This is our presumption. Problem remaining silent in exam. At two levels the cost is given which is not variable and fixed. We can segregate into variable and fixed. How? Assuming fixed cost same. So जो difference that is variable, for extra units we get variable cost per unit. And we can bifurcate into variable and fixed. अगर semi variable होगा तो आपको उसको वेरिएबल और फिक्स्ड में ब्रेक करना पड़ेगा. When the semi variable cost will be there, you have to break it down into variable and fixed element. फिर से बुक्स में फॉर्मूला लिखा हुआ है. To break semi variable cost into variable and fixed, first of all find out variable cost per unit in semi variable equals to difference in cost by difference in units. Difference in cost 4500 minus 4500 divided by difference in units 1200 minus 1200. That is called variable cost per unit. सही है. क्या लॉजिक है इसमें? 4000 के बदले 4500 is variable because there is no change in fixed. But वो वेरिएबल बेसिक क्यों लगा? क्योंकि आपने 200 यूनिट बेसिक बनाया. तो 200 यूनिट बनाने का वेरिएबल कॉस्ट 500, तो पर यूनिट 2.5. अब आप निकाल लीजिए. So which is logical, but in the books formulas are written. If we are not understanding logic in the problem, we can't apply that logic. Formula सामने रहेगा तो भी नहीं कर पाएंगे. You open the book, have a formula, and then also you will not be able to solve the question because it is not a formula. It's an understanding.
तो आपको जितना भी कॉस्ट दिया रहेगा क्या करना है, वेरिएबल और फिक्स में बांट देना है. वेरिएबल अलग, फिक्स्ड अलग. सो वेरिएबल यू विल कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल और टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट यू विल मेक इट टोटल, उसको पर यूनिट ये सब नहीं निकालना है. Then whatever the sale price in the question given for the product or service, you will be able to calculate break even, margin of safety, choke, chuck, everything. For everything, fixed cost by contribution per unit, fixed cost by contribution percentage. Numerator will be break even, fixed cost. Numerator will be fixed cost plus profit. Numerator will be only profit. जो है निकाल लेंगे. But सारा झमेला क्या होएगा, contribution per unit या contribution percentage निकालने में. In my example, I said 100 में 20 is variable cost. So 80 is contribution 80%. In technical language, contribution percentage is called profit volume ratio. 80% is called profit volume ratio. You will say why? Because contribution is profit only when we are operating beyond break even. $100 में $80 is covering fixed cost. But $100 में $80 is income बियॉन्ड फिक्स कॉस्ट. तो $80 ही इनकम है, प्रॉफिट है, बियॉन्ड ब्रेक इवन. बट द बुक्स, एग्जाम्स, क्वेश्चंस राइट 80% कंट्रीब्यूशन परसेंटेज. नो, दे राइट 80% पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. 20% वेरिएबल कॉस्ट, 80% पीवी रेशियो, दोनों मिला के 100%. 20% वेरिएबल कॉस्ट, 80% कंट्रीब्यूशन, 100%. Sale price minus variable cost contribution. Similarly, when I sell 10 lakh, मैंने बोला 10,62,000 सेल, 4,37,000 break even. तो margin of safety was 6 lakh something. So 4,37,000 divided by 10,62,000, around say 45%, and 6 lakh divided by 10,62,000, around 55%. So break even 45%. Margin of safety 55, total 100%. Contribution 80%, variable cost 20%, total 100%. Break even 45%, margin of safety 55%, total 100%. Sometimes in some questions, this percentage works very well. In which question I don't know. But break even and margin of safety is 100%. Variable cost and contribution in PV ratio is 100%. बट सारा कैलकुलेशन करने के लिए ओनली वन थिंग, कौन सा फिक्स कॉस्ट है, कितना है, कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है, अलग करिए फटाफट, चकाचक. मे बी आई गेव द एग्जाम्पल ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन. आप अपना सोचिए कैसे सोचना है. आप जहां पर काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन क्या बेचती है, क्या सर्विस ऑफर करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट का सेल प्राइस क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स. आप बोलेंगे सर मेरा ये काम कंपनी में नहीं है. अरे सोचिए ना यार, सोचिए तो सही. व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग सम बहुत जल्दी जल्दी होएगा. इन अ क्वेश्चन देयर आर 1000 फिगर्स. आप अपना सोचिए तो सही कि यहां पर ये फिक्स कॉस्ट है, यहां पर ये सेल प्राइस है, इतना वेरिएबल कॉस्ट है, इतना ब्रेक इवन होता होएगा. जब आप दिमाग लगाएंगे तब तो दिमाग चलेगा, लगाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा. थोड़ी ना ऑटोमेटिक होने वाला है कुछ. जब सम आएगा तभी सोचेंगे. व्हाट हैपेंड, द सम इज देयर ऑफ 7-10 लाइन्स. स्टूडेंट इज रीडिंग फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन just as an English language. Whereas when I start reading, they are saying PV ratio 80%. I start doing calculation, contribution 80%, variable cost 20%. They are giving some 2-3 types of cost. I start concentrating, ये variable है, ये fixed है, ये semi variable, अलग कर दी. जब तक नीचे पहुंचता हूं तब तक तो सब कैलकुलेशन खत्म. जब तक लास्ट लाइन पढ़े तब तक सारा कैलकुलेशन खत्म हो गया. और स्टूडेंट पढ़ रहा है एज एन इंग्लिश नहीं है. So you will be able to get concentrate on the question. जब आप ये चीज का नॉलेज 4 जगह लगाएंगे कहीं भी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई में वो है. बिकॉज तभी आप कहीं पर काम करेंगे तो ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता पाएंगे. आप अगर केवल क्लास में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिकली काम नहीं कर पाएंगे. प्रैक्टिकली काम करने के लिए प्रैक्टिकली, रवि यू विल से आई एम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड पर्सन, नो इश्यू. बट वेयर एवर यू आर वर्किंग यू शुड अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट कि हमारे यहां क्या होता है, क्या बेचते हैं, क्या सेल प्राइस है, क्या खर्चा लगता है, विच वन वेरिएबल फिक्स्ड.
एंड यू डू फॉर योर ओन कैलकुलेशन. मान लीजिए कोई टाइम पे यू आर सिटिंग विथ योर बॉस समबडी, और आपको वहां कुछ दिखाने का बुद्धि लग रहा है कि आई कैन से समथिंग हियर, कंट्रीब्यूट देयर. दे विल एनालाइज रवि नॉलेज इज इंक्रीजिंग, दे बिकॉज हिट करता है दिमाग में. देन दे विल से रवि शुड बी गिवन प्रमोशन बिकॉज रवि इज हेल्पिंग इन दोज एरियाज विच इज नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. पैसा वैसे आएगा ना, थोड़ी ना कोई आकर बोलेगा अभी सीएमए कर लिए, सीमा कर लिया, आओ मुन्ना आओ, ऐसा नहीं होता है. वेयर वी आर एंगेजिंग वी नीड टू अप्लाई आवर नॉलेज. दूसरा का हेल्प करना होगा, ग्रो करना होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा. ऑटोमेटिक. क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है. इन एग्जाम्स वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस टू पास द एग्जाम, वो तो है ही है. बट आप क्वेश्चन में तकलीफ कम महसूस करेंगे व्हेन यू अप्लाई एवरीथिंग प्रैक्टिकली. वाई आई गिव माई एग्जाम्पल, बिकॉज आप लोग कुछ जल्दी समझ में आएगा. इफ आई टेक एनी एग्जाम्पल, वो तो क्वेश्चन हम करेंगे ही, कौन मना किया है. नाउ इन C1 what I have written, analyzing the relationship between cost, volume, profit, relationship between selling the products, and these data can be fixed cost, break even, income tax, sensitivity. and मैंने ये सब अभी नहीं बोला है, मैं यहां तक पहुंचा हूं. फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन. मैंने क्या बोला? फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस proportionately. Total variable cost vary but per unit remains same. Fixed cost does not change. Total fixed cost is constant. Semi variable, both fixed and variable. आप उसको हाई लो ये सब फॉर्मूला मत देखिए, आप सिंपल सोचिए. Difference in cost by difference in unit. CVP is defined as a study of effects on future profit of changes in fixed cost, variable cost, sale price, quantity mix. Sales minus variable cost contribution. Contribution minus fixed cost profit. Variable cost is the cost which will change in direct proportion to sales. Fixed cost will remain constant for different levels of sales. Semi-variable is the cost which will change less than proportionately. This should be divided into variable and fixed category अगर हमें sum करना है तो. Contribution divided by sale ratio or PV ratio. It can be calculated as total contribution units sold into contribution per unit or total contribution sale value into percentage. At break even, contribution is equal to fixed cost. So contribution is calculated units into contribution per unit equals to fixed cost. So units का formula. Total sale into PV ratio equal to fixed cost. So sales value का formula. Formula नहीं है. This is not formula. To generate income, fixed cost plus profit, फिर formula. Margin of safety, फिर formula. ए भाई, formula नहीं है. Cash break even point. Somebody was saying that, sir, break even के लिए 3,50,000 avoidable. Somebody was saying, आपको डेप्रिसिएशन नहीं लेना है फिक्स कॉस्ट में तो कैश ब्रेक इवन, डेप्रिसिएशन नॉन कैश लेंगे तो टोटल ब्रेक इवन. मैंने यहां तक अभी डील किया है. ब्रेक इवन चार्ट भी आप देख सकते हैं. ब्रेक इवन चार्ट मैंने यहां बनाया नहीं है. यू कैन से दैट चार्ट की बाद में बात करेंगे. आई हैव टॉट अप टिल हियर. मैंने ये चीज जो लिखा है ये मैंने क्लास में लिखाया था. When I was taking the class, I gave the dictation in the class. Students were writing in the copy. Then that copy I have given to my typist or somebody. They typed the entire thing whatever I explained in the class. जो मैंने आप लोग को बोला. तो अभी क्लास में लिखना नहीं पड़ा because already that is written. This is not taken from anywhere. This is pure my saying. मैं जैसे बोलता हूं वैसे लिखा हुआ है. So for that reason when I am saying now I don't ask the student to write this. वो लिखना नहीं पड़ता है. आप एक बार क्लास का रिकॉर्डिंग करेंगे, इसको गो थ्रू करेंगे, कोई दो चार क्वेश्चन करेंगे, आप बोलेंगे क्वेश्चन कहां से करें. दिस इज सी एग्जाम सपोर्ट पैकेज. एग्जाम सपोर्ट पैकेज पार्ट 2 188 आई एम गोइंग इनटू अराउंड 250 पेज. 250 पेज में इट इज बी स्टिल गोइंग. आई वांट टू गो इनटू सी. This is B, question and answer. Then I am going into C. C में आए. ये C का पेज नंबर है C. This is all those things only which I was discussing. C के अंदर it is saying पेज नंबर कितना है 273. Questions. पेज
273 in CMA support package. और भी क्वेश्चन सब कर सकते हैं. You can say that at year. तो सपोज यू गो इन पार्ट वन में इसके साथ वी ऑलवेज गिव पीएम नोट्स, पीएम, बिकॉज दिस इज देयर इन एसीसीए, बट इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन पीएम, यहां गए पीएम, दिस इज पीएम. पीएम के अंदर इफ यू गो इन एग्जाम किट, इन एग्जाम किट और मे बी स्टडी टेक्स्ट ऑल्सो, इसमें we need to go around page number 20. Page number 20. Page number 20. Page number 20 में, not 20, it is around 23. ठीक है. What is the topic? Information system monitoring, ABC? No. Target costing, life cycle, environmental accounting? No. Throughput, cost, volume, profit analysis. It is there. The question number 84 to 89 and all that. In PM exam kit. Page. What is the page number? The page number is 25. 25. To see क्वेश्चन नंबर. ठीक है. आप स्टडी टेक्स्ट में भी जा सकते हैं. पीएम स्टडी टेक्स्ट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्टडी टेक्स्ट, द चैप्टर, नो दिस इज नॉट स्टडी टेक्स्ट. 2 मिनट में आ रहा है. स्टडी टेक्स्ट, दिस इज स्टडी टेक्स्ट. पीएम स्टडी टेक्स्ट, PM study text. PM study text. ये भी तो क्वेश्चन किट ही है यार. This is not opening. This will open after downloading only. लेकिन मैं यहां जाता हूं. ACCA PM. 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 Study text. Study text. Study text. Sorry, study text. In study text you go the second page. Sorry, the second page. In the second page you will get index. Index में CVP, cost volume profit analysis index, CVP chapter 3. Here also you can do the questions. आपके पास बहुत सारा है. अभी एक बार you can try some questions from any one place. If you are not feeling comfortable, don't try. Just that do the revision of whatever I said. We will be doing questions in the next class for break even this that, because anyhow I have not been able to discuss everything. मैंने पूरा चीज डिस्कस नहीं किया है. इसके अंदर सेंसिटिविटी एनालिसिस, then income tax, multiple products I have not discussed. I have discussed just these 2 parts. If you find you can do questions, नहीं करना है कोई बात नहीं है, हम लोग करेंगे. Next class में I will be able to finish this. Not now. Today I have some work at 10 o'clock. I need to leave. Otherwise I teach till 10:30. Half an hour we are leaving earlier today. Okay?
Go through the concepts, which is more important. Sums we can solve easily. Okay? Leaving. Thank you to all of you. Take care. Tada.